सर्दियों के मौसम में होने वाली है मूसलाधार बारिश। वेदर फोरकास्ट ने जारी की बड़ी अपडेट। वेदर फोरकास्ट के रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही जल्द सर्दियों के मौसम में कुछ इलाके में बारिश होने की संभावना है। सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होने से पर्यावरण, खेती बाड़ी और लोगों की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए सरकार वेदर फोरकास्ट के अनुसार सूचनाओं जारी करती रहती है। जैसे हम देख रहे हैं, वातावरण में लगातार तापमान नीचे गिरता जा रहा है और कहीं गर्मी तो कहीं ठंडी का माहौल बन रहा है। ऐसे में लिए आपको बताते हैं कि भारत में कौन से इलाकों में बारिश होने की संभावना सबसे अधिक है। इन इलाकों में जमकर हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में काफी तेज और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें, इनमें से कुछ मुख्य स्थान के नाम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान और गुजरात है। इसी के साथ ही साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में जैसे कि केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सरकार ने भारी और तेज मूसलाधार बारिश की संभावना के लिए 25 नवंबर से 27 नवंबर तक की तिथि को निर्धारित माना है। वहीं कराईकाल और पुडुचेरी में 2 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में नया विक्षोभ करेगा एंट्री। वेदर फोरकास्ट। भारत के कुछ चुनिंदा स्थानों पर 2 से 3 दिनों तक का हाई अलर्ट जारी होने के बाद सरकार ने जनता से सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके अलावा आपको बता दें, वेदर फोरकास्ट द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया विक्षोभ एंट्री करने वाला है। दी गई सूचनाओं के अनुसार अंडमान निकोबार में भी तेज बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है। इन सभी जानकारी के बीच वेदर फोरकास्ट ने सबसे बड़ी चेतावनी तमिलनाडु और कराईकाल को दी है। इन दोनों जगह पर लगातार 24 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड भी बन सकता है। इसी कारण आसान मन लगाया जा रहा है कि बारिश और तूफान के थमने के बाद वातावरण में अचानक सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। There is going to be torrential rain in the winter season. Weather forecast has released a big update. According to the report of weather forecast, there is a possibility of rain in some areas in the winter season very soon. Heavy rainfall in the winter season causes great harm to the environment, agriculture and people's health. Therefore, the government keeps releasing information according to the weather forecast. As we are seeing, the temperature in the atmosphere is continuously falling, and at some places it is becoming hot and at other places it is becoming cold. In such a situation, let us tell you which areas in India are most likely to receive rain. Heavy rain may occur in these areas. The Indian Meteorological Department has predicted heavy and torrential rain in many areas of the country. Let us tell you that the names of some of these main places are Maharashtra, Madhya Pradesh, South Rajasthan and Gujarat. Along with this, heavy rains may also be seen in some areas of South India like Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep. The government has considered the date from November 25th to November 27th as the date for the possibility of heavy and heavy torrential rains. There may be a possibility of heavy rainfall for 2 days in Karaikal and Puducherry. A new disturbance will enter northwestern India. Weather forecast after issuing a high alert for 2 to 3 days at some selected places in India. The government has cautioned the public and have been asked to remain alert. Apart from this, let us tell you that according to the information shared by Weather Forecast, a new disturbance is about to enter northwestern India. According to the information given, heavy rain and storm can also be seen in Andaman and Nicobar. Amidst all this information, the weather forecast has given the biggest warning to Tamil Nadu and Karaikal. A record of 24 continuous hours of heavy torrential rain can be created at both these places. For this reason, it is being assumed that after the rains and storms stop, the sudden cold in the atmosphere is going to increase a lot. इन राज्यों में ठंडी हवाओं के साथ आज हो सकती है झमाझम बारिश। जाने मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ठंड है, लेकिन एक दिन बाद ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इन राज्यों में ठंडी हवाओं के साथ आज हो सकती है झमाझम बारिश। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ठंड है, लेकिन एक दिन बाद ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे मौसम बदल जाएगा। 25 नवंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा, आईएमडी ने बताया है। उम्मीद है कि सिस्टम थोड़े समय के लिए रुक जाएगा और कमजोर हो जाएगा। यद्यपि इसका अधिकांश प्रभाव मध्य और ऊंचे इलाकों पर ही पड़ेगा, जबकि इसका सबसे अधिक प्रभाव ऊंचे इलाकों पर होगा। निचले इलाकों में हल्की बारिश ही होती है, जैसे
बनिहाल, श्रीनगर और पटनीटॉप स्काईमेट 1। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी का कहना है कि आज 24 नवंबर तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में ठंडी हवाओं के इंजेक्शन मत दो। घर पर जोड़ों को ठीक करने का सबसे सरल तरीका है। तेलंगाना, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हल्की बारिश उड़ीसा के दक्षिणी तट, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में हो सकती है। 25 नवंबर को भी पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों के ऊपरी भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली, देश की राजधानी, अभी भी ठंडा है। यहाँ मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा है और सुबह और शाम ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में तापमान से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 1 पॉइंट गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लखनऊ में भी सुबह कोहरा या धुंध देख सकते हैं और बाद में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। नोएडा में कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान रह सकता है। इस बार की सर्दी कम पाएगी। सर्दी के सीजन में तापमान सामान्य से कुछ अधिक रहेगा। ऐसा एल नीनो इफेक्ट की वजह से होने के आसार हैं। नवंबर माह का तापमान सामान्य से कुछ अधिक रहा है। खास बात है कि राज्य में छा रही धुंध तापमान कम होने की वजह से नहीं, बल्कि प्रदूषण की वजह से देखी जा रही है। आईएमडी पटना की जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे में बिहार में पूर्वैया चलने की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन और बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 25 नवंबर के आसपास हवा का पैटर्न पछुआ से पूर्वैया होने की उम्मीद है। इससे प्रदेश में काफी मात्रा में नमी बढ़ जाएगी। इससे विशेष रूप से रात के पारे में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आईएमडी के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक एल नीनो इफेक्ट से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता काफी कम रहने की संभावना है।